Hello dear students, in this video we are going to study unit 1 of your physical chemistry, that is paper 2. So in this video we are going to study some basic concepts of electrochemistry. So first of all we will see the definition of electrochemistry. So what is electrochemistry? It is a branch of chemistry which deals with the study of chemical effects of electricity and electrical effects of chemical reaction. What does this mean? It means that whenever certain chemical reaction takes place, it can generate electricity. Okay, so that is the electrical effects of chemical reaction. And what is chemical effects of electricity means? Some chemical reaction needs electricity to take forward. Okay, so that is the chemical effects of electricity. So the definition of electrochemistry is a branch of science which deals with the study of chemical effects of electricity and electrical effects of chemical reactions. So to understand electrochemistry in a better way, we must know some basic terminologies used during the study of this topic. So conductor, insulator, electrolytes, non-electrolytes are some basic terms which are used. So what is conductor? Conductor is a substance which can conduct electricity in a simple words. Okay, so what is insulator? It is a substance which cannot conduct electricity. Okay, that is the insulator. Okay, some solids and liquids can conduct electricity. If the conductor is a solid, then it can conduct electricity due to the presence of free electrons in it. And if the conductor is a liquid, then it is conducting the electricity due to the presence of ions in it. Okay, so the solution which can carry current are of two types, that are electrolytes and non-electrolytes. Okay, so what are electrolytes? The solutions which can carry current. And what are electrolytes? Obviously the solutions which does not carry current are called non-electrolytes. Okay, so to understand electrochemistry, we must understand some basic concepts of this electrochemistry, which involves first the Ohm's law. You might have heard about this law in your previous years. So what is Ohm's law? This law states that if across a certain substance we pass the potential, or we applied the potential E, and current I flows through it, then the resistance is given by the ratio E by I. So क्या होता है इसका मतलब वो देखते हैं हम. समझो हमने किसी सब्सटेंस से E इतना पोटेंशियल जो है पास किया है, और उस सब्सटेंस ने हमें अदर एंड पे हमको इतना करंट दिया है. तो जितना पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट हमको मिलेगा. दैट मीन्स दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जस्ट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, वी विल put a certain proportionality constant, that is called R. So the equation becomes E is equal to Ri. So this R is the resistance. So what this Ohm's law state? If across two ends of a conductor, suppose this is a kind of a wire, it is a conductor, these are the two ends of this wire or conductor. Now we are providing what? We are providing here potential E, and at this end we are getting the current I. Okay, so the ratio is E is directly proportional to I, and here what this Ohm's law states,
if a voltage is applied and current I flows through it, then the resistance is given by the ratio E by I. So therefore this R becomes equal to E by I. So this is the Ohm's law. Okay, what it says? Okay, it says that whenever a certain potential is applied to a conductor, current I flows through it, then the resistance is given by the ratio of E by I. Okay, so this is the resistance. Now this resistance has a unit, that is unit of E is V and unit of I is ampere. Now what will be the unit of R, that is resistance, that will become V by A, or we can say V A inverse. Okay, so this way A inverse is also termed as Ohm. Okay, volt per ampere is also called as Ohm. This symbol is read as Ohm. Okay, so this is the unit of resistance. रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लीजिए कि हमने किसी एक मटेरियल ले लिया, समझो हमने एक वायर ले लिया किसी भी मटेरियल से बना हुआ, उस वायर के थ्रू हम कोई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं सर्टन अमाउंट, सर्टन वोल्टेज का, समझो हमने 10 वोल्ट का उसको पोटेंशियल अप्लाई किया और उस वायर के थ्रू हमें समझो 5 एम्पियर का करंट मिल गया। ओके, क्या किया हमने 10 वोल्ट का क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई किया और हमको करंट कितना मिला, हमको 5 एम्पियर का करंट मिला। तो उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, फिर उस वायर का क्या करेंगे हम, रेशो 10 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ हमारा रेजिस्टेंस हो गया 2 ओहम। ओके, तो ये सिंपल वर्ड्स में रेजिस्ट करना मतलब रोकना। ठीक है, तो वो जो मटेरियल है जितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे उतने का करंट हमें नहीं दे रही, कुछ ना कुछ वो मटेरियल रोक रहा है, तो उसके रोकने के पावर को हम बोलेंगे उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना R = E by I। तो कंडक्टेंस, उसके अपोजिट टर्म होती है कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस, हमने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस = E by I। तो कंडक्टेंस इज जस्ट इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज C is the conductance which is the inverse of resistance 1 by R। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, C = 1 by R का C = 1 by R हुआ, तो R का फॉर्मूला हमने देखा था E by I, तो फिर C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I by E। ओके, अब उसके यूनिट क्या हो जाएंगे, C का यूनिट क्या हो जाएगा, हमने R का यूनिट देखा था, R का यूनिट क्या था, ओहम। ओके, तो C का यूनिट भी उसी तरीके से हम डिनोट करेंगे। C का यूनिट ओहम नहीं होता लेकिन ओहम का इन्वर्स होता है। ठीक है, कि कई किताबों में आप इसको इस तरह से लिखा हुआ पाएंगे, इस जैसे ये ओहम, उसकी स्पेलिंग हो गई OHM, तो इसको पढ़ा जाता है मो, इन्वर्स ऑफ ओहम। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ हुई, ओहम इन्वर्स या फिर मो, या फिर उसका एक और यूनिट है जो ये है सीमेंस। ठीक है, तो ये सीमेंस, तो ये सारे यूनिट जो है ये कंडक्टेंस के यूनिट है, ओहम इन्वर्स, मो, ठीक है, ये सिंबल के थ्रू या फिर S, ऑल दीज यूनिट्स आर सेम। नाउ सो व्हाट नेक्स्ट टर्म इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस का मतलब आपको पहले समझ में आया होगा, रेजिस्टेंस मतलब उसका रोकने का पावर, और कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से या फिर पोटेंशियल उसमें से कंडक्ट कर रहा है, वो जितना
है उसको कुछ रोक नहीं रहा, तो उसके थ्रू वो पास आउट हो रही है, पास आउट होने देने का पावर, दैट इज़ द कंडक्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? R, that is the resistance, is directly proportional to the length of that material. कितने, समझो हम वायर ले रहे हैं तो उस वो कितना लंबा है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा लंबा उतना उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, समझो कोई गोल वायर हमने ले लिया तो उसका एक सेक्शन समझो हमने ले लिया, तो ये जो होता है इसका ये जो सर्कल है और उसका कंप्लीट इनसाइड वाला भी पार्ट, ठीक है, और ये सारा सब कुछ ये हो गया उस वायर का क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ठीक है, तो इसको रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो फार्मूलेज हमने देख लिए, क्या, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अल्टीमेटली हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ओके, सो क्या बना हमारा फार्मूला, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाय A, where R is resistance, L is length of the material and A is the area of क्रॉस सेक्शन। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो R इज इक्वल टू रो L बाय A। ओके, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इस यहाँ पर इस जगह पे ये प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। तो ये रो क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसी को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो क्या बना उसका फार्मूला, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, वेयर R इज रेजिस्टेंस, रो इज़ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको अच्छे से याद रखिए इसका नाम, ठीक है, क्या है ये, रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, L इज़ लेंथ एंड A इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पूरे इसमें से हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की क्या डेफिनेशन बनेगी उसकी, उसका फार्मूला क्या बनेगा, रो इज़ इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाय L, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा उसका। तो R जो है उसका रेजिस्टेंस हुआ, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L हो गया लेंथ। तो सपोज़ ये दोनों मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ये यूनिट है, इनकी वैल्यू यूनिट है मतलब 1 है, इसकी वैल्यू समझ लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू 1 मीटर है, तो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू R बन जाएगा, उसी पर से इसकी डेफिनेशन बनती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस offered by a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। और दूसरा सेंटेंस में हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस offered by the conductor of unit length and unit area of cross section। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉरी यूनिट क्या बनेगा उसका, तो यूनिट हम निकालते हैं उसका, सिंपल है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला अगर आपको याद है तो यूनिट आप अपने आप निकाल सकते हैं, R A बाय L, ये इसका फार्मूला हुआ। तो R का यूनिट हमने लिया था ओहम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, तो क्या बनेगा, दिस मीटर विल गेट कैंसल एंड द यूनिट विल बिकम ओहम मीटर। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ resistivity or specific resistance। Okay, now the next term is specific conductance or conductivity। So what is specific conductance or conductivity? It is
in simple words, a reciprocal of reciprocal of resistivity. ठीक है, conductivity is the reciprocal of resistivity. So the symbol is K, that is the kappa in Greek word. It is written as K. Kappa, known as kappa, is equal to 1 by rho, where K is the conductivity and rho is the resistivity. So some terms, if this is what is R, R is the resistance. What is C? C is the conductance. R is directly proportional to L and inversely proportional to A. C is directly proportional to A and inversely proportional to L. Okay, now here, just to remove proportionality constant, we will proportionality sign, we will put proportionality constant, that is rho, and the equation becomes rho into L by L. Here, just to remove proportionality sign, we will put a proportionality constant, that is K, kappa, and equation will becomes K into A divided by L. ओके, सो जस्ट इन्वर्स है उसका. ओके, ठीक है. तो ये जो कप्पा है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? K इज इक्वल टू, क्या बनेगा इसका फार्मूला? C इज, ये फार्मूला अपना ऐसा था, C इज इक्वल टू K इंटू A बाय L था. ठीक है, तो K का फार्मूला क्या बनेगा? C इंटू L बाय A. इसका यूनिट क्या निकलेगा? ठीक है, इसका यूनिट, C का यूनिट था ओहम इनवर्स. ओके, और L का यूनिट है मीटर, और एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर. तो बना क्या फिर इसका यूनिट? ठीक है, तो K का यूनिट बनता है, क्या बनता है? K, इसका यूनिट बनता है ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये हो गया उसका यूनिट. ठीक है, तो उसको हम, उसका दूसरे यूनिट भी हम बता सकते हैं, दैट इज़, एक तो पहला हो गया ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, दूसरा हो गया ओहम इनवर्स मतलब मो, तो यूनिट बना मो मीटर इनवर्स. मो को हम लिखते हैं साइमन्स, तो साइमन्स मीटर इनवर्स, ये उसका तीसरा यूनिट भी हो गया. अगर हम सीजीएस सिस्टम में लेते हैं यूनिट, तो क्या बनेगा सीजीएस सिस्टम में? मीटर की जगह पे हमको लिखना है सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक टर्म्स हमने समझ लिया. नेक्स्ट वीडियो में और 2 बेसिक टर्म्स हम समझेंगे, दैट इज़ इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टेंस. ओके, कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पर्सनली कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं. सो हियर वी आर एंडिंग दिस वीडियो.